Hi student, again Jasmine Faraz here and welcomes you on my channel. I hope everything is going smoothly. Your doubt get clear. Already we have seen first and second textbook unsolved problem. Today we'll start fourth one. Now why not third one? So we'll see the third one later because in that question they have given partner's capital as well as current account. So I always try to teach from easy to difficult one. Once you get confident, then difficult problem also become easy for you. So we'll start today fourth one. So here is your problem. See, first we'll read the problem. Asha, Usha and Nisha are the partner and their ratio is 2:1. The following is the balance sheet. Now pay attention on the date 31st March 2019. This is their balance sheet before dissolution of the firm. Now, if they want to dissolve the firm, they need to sell this asset, pay off this liability, and then only they can close their business. So this is the old balance sheet. Now we'll move to the adjustment. On the about date, partner decided to dissolve the firm. About date, that means 31st March 2019. What they realized is assets were realized. Realized that means sold out as machinery 90,000, stock, investment and the debtors. They sold this all assets. These are the amount. Then of course resolution expenses, as I told earlier, resolution expenses is also called as a realization expenses. The expenses which incurred at the time of dissolution of the firm. The third one is the goodwill of the firm is realized. This is a new one we are going to see in this question because they have not given here goodwill, they have not mentioned here goodwill, but still they realize that means they sold the goodwill. So we'll see what we have to do. Here they have given the past the journal entry, but as I told earlier also, we'll always first focus on the ledger. Once the ledger you understand, the journal entry तो बाय हाथ की चीजें हमारे लिए that all already have teach you in admission of partner. Okay, so we'll move to the account. Now which account we are supposed to make? Yes, we read here again. See which account? Of course, we have to open realization account, partner's capital account. See, partner's current account is not given. Only one capital given. That means we need to open only one partner's capital. That is why I have not solved third one. We'll solve later. Here they have given only fixed capital. So we'll write here partner's capital account. Third account will be a Asha loan. See, this is a new for you. If you see my first video, I mentioned there, if they mention any partner's loan, we are supposed to open a separate account. अगर उन्होंने पार्टनर्स का लोन दिया होगा बैलेंस शीट में, तो हमें पार्टनर्स का लोन अलग अकाउंट ओपन करना है. क्यों अलग अकाउंट ओपन करना है? बिकॉज एज पर रूल वी ऑलवेज गिव अटेंशन टू द एक्सटर्नल लायबिलिटी. मतलब हम सोचो, पहले हम घर वालों का लोन नहीं पे करेंगे. आशा ये तो अपने घर की मेंबर है, शी इज द पार्टनर ओनली, तो उसको हम बाद में पे करेंगे तो भी चलेगा. पहले हम बाहर वालों को पे करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. इनको पे करने के बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो हम आशा का लोन पे करेंगे. दैट इज वाई फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू ओपन सेपरेट अकाउंट. सो फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू ओपन पार्टनर्स लोन अकाउंट. फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम में दिया ही नहीं था उन्होंने पार्टनर्स लोन. ठीक है, वहां पे हमने 3 ही अकाउंट ओपन किए. अगर आपने मेरा सेकेंड थर्ड वीडियो देखा होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 and 2. So they have not given in partners loan account, so that time we did not open the partners loan account. But now here we need to open partners loan account. So third account will be a partners loan account, and fourth one as it is cash oblique bank account. Now here they have given bank, so you can open bank account. But as I told earlier, better we make a habit to write cash oblique bank account. Okay, so here we need to open 4 account. See here, first one is the realization account. Open this in separate page because see here lots of asset is there. So here I open a separate. Next page I open partners capital account, then Asha loan account and finally cash account. ठीक है, तो 2 पेज पे आपके यह 4 अकाउंट ओपन हो जाएगी. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, second is the partner's capital account, third of course Asha loan account, this is a partner,
दैट इज वाई वी ओपन द सेपरेट अकाउंट. अगर आशा की जगह कोई और किसी का नाम होता, कोमल, रानी, राजा, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती, तो हमने क्या किया होता, अलग अकाउंट ओपन नहीं किया होता. जैसे हमने क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल को ट्रीटमेंट देते, रियलाइजेशन की क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे, वैसे ही हमने उनको किया होता. बट हियर वी नीड टू ओपन सेपरेट अकाउंट. एंड लास्ट वन, फोर्थ इज द कैश अकाउंट दैट वी नीड टू गेट टैली. Then I hope you understand the which account we need to open in this problem. That is why always read the question first, decide what we need to open and then start the solution. I hope you are doing along with me. Otherwise pause my video, first draw this account and then start the again video. Okay, shall we move? Okay, first is the realization account. Now as you know, first and second we have seen. What is the first step? First we need to transfer all assets in the realization account. But which side? Yes, अब आपको तो याद हुआ होगा, asset show debit side. In admission and retirement also we taught the same things. Asset always denote debit side. So this all asset will go debit side. Now there is one more new thing for you, RDD. Okay, chalo, we'll see what we have to do. First we'll transfer this all assets. We never transfer bank account because already we open a separate account. और बैंक अकाउंट कभी सेल नहीं किया जाता है, कैश सेल नहीं होता है, तो नेवर ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ दिस इज ऑल्सो न्यू item, profit and loss account. So you can tell here this is called undistributed loss. Here you can write undistributed loss. That means पहले कभी लॉस हुआ था जो उन्होंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, बट नाउ डिसोल्यूशन करना है हमको हमारे फर्म का, तो जो भी हिसाब किताब है हमें खत्म करना है. तो अब ये जो लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, वो हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये और ये तीनों आइटम छोड़ के बाकी सब अकाउंटिंग आइटम विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन डेबिट साइड. सी हियर 1 2 3 4, 1 2 3 and the 4. Now if you notice, debtors I have taken this amount 1,10,000. See here, I have not taken this amount. I have taken inner column amount 1,10,000. So then what about the RDD? I have not mentioned here RDD. तो RDD को क्या करना है? Yes, RDD तो करना है, हमें लिखना है, but we need to write in credit side. Okay. So this is a rule. RDD always write realization credit side because this is one type of liability. This is a reserve for doubtful debts. Okay. So this is not a asset. So we'll for time being we'll write here. So देखो automatically हमारा debtors 1,10,000 debit minus 6,000 credit. Automatically answer come 1,04,000. अगर हमने ये debit minus credit किया, debit minus credit, finally what answer will get 1,04,000. I hope understand. ज़्यादा सोचो मत, just याद रखो कि RDD always write here this side. So this is done. So we finish this one. So machinery, investment, debtors, stock and RDD also we mentioned here. Now we'll move to the next, profit and loss. As I told, profit and loss when they give asset side, that is called undistributed loss, and this loss is going to distribute among the partners. But which side? Of course they have given asset side, that means debit side. So let's move to the partners capital debit side. See here, this we are going to see. This we finish. This is also finished. Now profit and loss debit side. So move to the debit side. As per ratio, see 2:2:1. I hope everyone know now how to calculate the ratio. अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एडमिशन के मेरे एक वीडियोस देखो, वहाँ पे अच्छे से मैंने समझाया कैसे कैलकुलेट करना है. ये 36,000 को 36,000 जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट दिस 36,000. सी ये 36,000 को हमको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोगों में. और रेशियो व्हाट दे हैव गिवन 2:1. ठीक है, तो 36,000 इसमें डिवाइड करो तो विल गेट दिस आंसर. एंड व्हाई डेबिट साइड? बिकॉज asset शो डेबिट साइड. ओके, चलो we finish this one only. Now bank, as you know, we already operate a separate account. So here see, you can write here cash oblique bank. ठीक है.
cash oblique bank, or you can write only bank account. So this is 8,000, transfer here to opening balance 8,000. So this is also done. So we finish this side. Okay. Now we'll move to the liability side. Liability side show which side? Always show credit side. Done. So we'll move this partners capital account first. So partners, we have a separate account, and which side will transfer this? Credit side. So let's start. See your credit side. 1,20,000, 40 and 40. Done. Credit side. Because opening balance always show credit side. Done. Now what about the general reserve? Of course we need to distribute it. जैसे हमने ये distribute किया among the partners, वैसे ये भी distribute करना है. But now which side? Liability means credit side. So we'll distribute here. Credit sides. By general reserve again 2:2:1. 12,000 हमको किस में distribute करने? 2:2:1. Here see 2:2:1. Done. Next, what about this creditors, Asha loan and bills payable? Okay, this we'll see. Chalo, we'll see here. This is done already. This is done. See here. This is also we have done general reserve. Now creditors and bills payable. See here creditors and bills payable. ये तो हमने पहले ही किया है, हाँ? ये आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है? तो ये तो हमने पहले ही किया था जब ये ट्रांसफर किया था. And now we transfer this capital and bills payable. See here 80,000 and 28,000. What about Asha loan? See, we have not transferred this year. अगर आशा की जगह कोई और नाम होता, पार्टनर्स के अलावा किसी का नाम होता, एज्यूम करो किशोर लोन, फिर शाहरुख खान लोन, सलमान खान लोन, है ना? So that they are not the partner. So that time इनके साथ ही हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया होता. But now Asha is a partner. So we need to open separate account. So already we have opened the separate account. You see, make a total, इसकी total कर लो, okay? See, which side? Credit side, because Asha loan is given. Which side? Asha loan is given liability, that means credit side. So of course we'll also transfer credit side. So done, posting, done. Within 5 to 6 minutes we completed our posting. हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसे 12 मिनट लगे, बट आप डायरेक्टली अगर पेपर में सॉल्व करोगे तो हार्डली इट्स टेक 6 to 7 minutes ट्रांसफर. डेबिट ऑल आइटम विल गो असेट साइड, sorry, asset all item will go debit side, and liability, that means all liability will go credit side. Hope you understood. ठीक है, चलो we'll now move next. Yes, we have done. See, again and again check the question कि भैया कुछ आइटम रह तो नहीं गया. ये आरडीडी का भी मैंने बताया. दिस इज ऑल्सो न्यू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये भी हो गया हमारा, ये भी नया था, ये भी हो गया हमारा. सो वी फिनिश दिस. नाउ विल मूव टू दिस. Now posting has a one effect, so of course we wrote only one time, but the adjustment has a minimum two effects. So let's start. They realize the asset, dissolution and goodwill. Will start first this one, asset. चलो ऑलरेडी भी अकाउंट देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर दिया, मतलब बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके सामने ही एडजस्टमेंट है, ठीक है? सो विल फर्स्ट सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. कहीं तो एक साइड में लिखो 3 अकाउंट हमने ओपन किए, मेन बेसिकली 3 अकाउंट हमने ओपन किए हैं. हाँ, आशा लोन अकाउंट है, बट वो सप्लीमेंट्री है, हमेशा नहीं ओपन करना पड़ता, हमेशा ये 3 अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है? तो 3 अकाउंट कहीं तो वर्किंग नोट में या पीछे कहीं तो लिख लो. Now we'll see asset realize. हमेशा as I told you, question only show solution. अगर ध्यान से देखोगे ना तो आधा तो आंसर ना आपको क्वेश्चन में ही मिलता है. Now realize किया है, realize means sold, तो आपको इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट तो है, realization. और क्या रियलाइज किया है? ये सब असेट किए हैं, तो ऑफकोर्स जब हम सोल्ड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? ऑफकोर्स कैश मिलता है. और वैसे भी यहाँ पे कहीं पे भी दे हैव नॉट मेंशन कि टेकन बाय पार्टनर्स है किसी पार्टनर्स का नाम. तो ऑफकोर्स इसका तो काम ही नहीं है जबरदस्ती पार्टनर्स का नाम नहीं लिखना है. दे हैव नॉट मेंशन हियर पार्टनर्स नेम. सो ओनली 2 accounts we have to operate, realization and the cash. Now again the next question, ये तो हो गया भैया कि हमको realization account में जाना है और cash account में जाना है. But the main big question is that whether debit or credit. Now you tell me debit or credit. If they sell
their asset, they are getting income. जब भी हम कुछ बेचते हैं तो of course we are getting income. So income कौन से साइड लिखते हैं? Realization is nominal account. See, again and again I am repeating क्योंकि sometime they will ask in fill in the blanks also. Give one word also. Fill in the blanks में तो पूछती है maybe realization account is a dash account. So of course realization account is a nominal account. What nominal account show or tell? Of course, debit expenses, losses, and credit income and gains. So they get income. So we'll write here. What we'll write here? In realization account, whose name we are going to write? Cash. Realization के अकाउंट में कैश का नाम लिखना है और कैश के अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम लिखना है. So we'll write here by cash. See, directly मैंने लिखा है मशीनरी 90,000, stock 36,000. इन्वेस्टमेंट 42,000 एंड डेटर्स 90,000. ठीक है. अगर आप मेरा पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें मैंने सेपरेट बताया, बार बार लिखा है मैंने बाय कैश मशीनरी, बाय कैश फिर ब्रैकेट में स्टॉक, फिर बाय कैश इन्वेस्टमेंट. बट नो नीड टू राइट दिस. ये सब एक बार ही लिखो, सबकी टोटल यहाँ पे लिखो डायरेक्ट कैश के सामने. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो डायरेक्टली ये सब की टोटल एक बार ही मैंने इफेक्ट दिया. ठीक है. तो दिस इज क्रेडिट साइड. अगर मैंने ट्रिक के हिसाब से पढ़ाओगे आपको तो ट्रिक क्या है हमारी, अगर कोई कोई बच्चों को डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता है तो सिंपल है भैया. मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर से एंट्री कहाँ से की थी? डेबिट से की थी. अब उनका टाइम आ गया बाहर निकलने का, चलो बाहर जाओ, सोल्ड आउट हो जाएंगे. तो बाहर कहाँ से जाएंगे? अब कुछ यहाँ से जाएंगे. मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, है ना, आपका फेवरेट एग्जाम्पल दिया था मैंने. जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो एक तरफ से हम एंट्री करते हैं और एग्जिट अलग गेट से होते हैं. तो इन चारों भाइयों ने एंट्री कहाँ से की थी? डेबिट साइड से. अब जो वो बेचे जाएंगे, बाहर जाएंगे फर्म से, तो कहाँ से जाएंगे? क्रेडिट साइड से जाएंगे. डन. तो आप ट्रिक से भी यूज कर सकते हो या रूल भी अप्लाई कर सकते हो एज यू विश. तो नाउ सेकंड इफेक्ट, अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश है तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन. See here, cash get increase. That is why I put always here plus. तो आपको याद रहेगा, अगर कैश इंक्रीज हो गई तो हमको यहाँ लिखना है, और अगर कैश कम हो गई डिक्रीज तो हमें यहाँ लिखना है माइनस. ये माइनस का साइन है. ठीक है. तो 2,58,000 firm get the cash. Previously they had 8,000 and now they 2,58,000. I hope first adjustment समझ में आई है. Very simple. And already we have seen in first and second practical problem. तो अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. Now we'll move to the dissolution expenses. चलो. Now again every adjustment has a two effect. Expenses है तो एक इफेक्ट तो जाएगा रियलाइजेशन में. खर्चा होता है तो भैया पैसे भी जाते हैं तो दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश में. और वैसे भी दे हैव नॉट मेंशन हियर कि पार्टनर्स ने पे किया है, तो पार्टनर्स का नाम नहीं है ना, तो तब जब तक पार्टनर्स का नाम नहीं आता है तब तक ये अकाउंट में जाना ही नहीं है. तो टू अकाउंट गेट इफेक्टेड. ठीक है. नाउ डेबिट क्या क्रेडिट. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सो दिस इज एक्सपेंसिव. सो विल राइट हियर टू कैश. व्हाई वी कैश? बिकॉज सेकंड इफेक्ट कैश में जाने वाला है. सो विल राइट हियर कैश ऑब्लिक बैंक एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट डिसॉल्यूशन. हाउ मच? 6,000. डन. तो रियलाइजेशन के डेबिट में अगर कैश है तो कैश के क्रेडिट में क्या होगा? रियलाइजेशन होगा. सी बाय रियलाइजेशन 6,000. Then again and again I am repeating every adjustment has a two effect. One is debit, so of course second is the credit. Then so now we'll move goodwill of the firm realize. Okay, what is this goodwill? भैया goodwill तो दिया नहीं है, फिर बेचा कैसे? See, goodwill is intangible asset. उन्होंने बैलेंस शीट में नहीं बताया है, लेकिन जब उन्होंने डिसॉल्व किया तो उनको पैसे उनके रेपुटेशन के मिल गए. ठीक है. तो अगर गुडविल असेट है ना, गुडविल तो ऑफकोर्स असेट है, लेकिन अगर गुडविल दिया होता बैलेंस शीट में तो हमने यहीं पे लिखा होता ये सब के साथ, है ना. अगर क्वेश्चन देखा, अगर क्वेश्चन में भी इनके साथ ये सब आइटम के साथ गुडविल भी दिया होता तो हमने यहाँ लिखा होता. तो अगर गुडविल अब बाहर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा, है ना. एंड गुडविल रियलाइज हुआ है मतलब यहाँ पे उनको इनकम हो गया, पैसे मिले. सो विल गो क्रेडिट साइड बाय कैश गुडविल 48,000. सी दो दे हैव नॉट गिवन हियर, बट स्टिल गुडविल एक ऐसी चीज है जो नहीं दिखती है, लेकिन हम जब उसको सेल करेंगे तो हमको उसके पैसे मिलते हैं.
Goodwill is intangible asset. Intangible asset means which we cannot see, touch, felt, right? So we have to write here. जैसे बाकी के एसेट को सेल किया तो हमने क्रेडिट में लिखा, वैसे गुडविल को भी हमने सेल किया तो क्रेडिट में लिखा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनकम फॉर द फर्म, राइट? तो नेक्स्ट इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन। देखो कैश के अकाउंट में हमेशा नाम रियलाइजेशन का होना चाहिए, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा तो उसमें कैश होगा। ये आपको ये सब कब समझ में आएगा, जब आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, अदरवाइज सब सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है? दिस इज नॉट द थ्योरेटिकल पार्ट, हमारा थ्योरी ओसी इको एसपी नहीं है कि सिर्फ सुनो भैया, नहीं, यहाँ पे हमको हमारा हाथ चलाना ही पड़ता है। ओके, चलो नाउ विल सी ओवर, खत्म हमारी एडजस्टमेंट, बट दैट डजंट मीन कि हमारा अकाउंट खत्म हो गया। बोलो क्या मिसिंग है? हाँ, असेट तो सब सेल किए हमने भैया, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, गुडविल भी यहाँ पे नहीं दिया था, फिर भी हमने रियलाइज कर दिया, तो असेट तो सेल हो गए भैया, है ना? लेकिन लायबिलिटी बाकी है ना, पहले ये दोनों को पे करेंगे और फिर ये तीसरे को आशा लोन को पे करेंगे। बिना पे किए हम फॉर्म तो बंद ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का रूल है, वरना लोग आ जाएंगे हमको पकड़ने के लिए, आशा उषा निशा को पकड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पेमेंट ही नहीं किया है, ठीक है? तो most of the time they have not given in the adjustment he paid the creditors bills payable, but we have to pay the liability. So let's start. Now liability ने कहाँ से एंट्री की थी? Now one more thing, now forget about RDD. RDD ये कुछ पे ऑफ नहीं होती, सिर्फ एक बार जब हम पोस्टिंग करते तब एक बार ही उसको लिखो, बाद में उसका काम खत्म। सिर्फ 2-3 बार मैं उसको ऐसे कट कर ली, देखो तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा कि इसने ऐसे रेड कलर से RDD कट की थी, ठीक है? तो कट की थी मतलब यहाँ से आप मत कट करो, दैट मीन्स कि इसका कुछ यहाँ पे काम नहीं है, ये सिर्फ एक बार लिखना है, दैट्स इट, बाद में हमें इसका कुछ काम नहीं करना है। नाउ वी हैव टू पे दिस क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। एंट्री कहाँ से की थी क्रेडिटर्स में? क्रेडिट से। बाहर कहाँ से हो गए? डेबिट से। कौन से दो इफेक्ट हो गए? एक तो एक रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा और दूसरा पे किया है भैया, तो ऑफकोर्स कैश अकाउंट में, तो राइट हियर टू कैश। देखो दे हैव नॉट गिवन अमाउंट, तो अमाउंट नहीं दी है, दैट मीन्स सेम अमाउंट वी हैव टू टेक, ठीक है? पहले मैं ये इरेज करती हूँ, वरना आप भी ना इरेज करोगे और फिर बोलोगे अरे आरडीडी, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बोला है कि इसका आरडीडी का कुछ काम नहीं है, ठीक है? तो ना आप भी कट करोगे और टोटल के वक्त नहीं लोगे। डन। सो ये दोनों यहाँ पर लिखा क्रेडिट, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, debit all expenses and losses. So of course when we pay the creditors and bills payable, this is one time of expenses, not one type of expenses only, so we write here debit side. Now second effect, अगर realization के debit में कैश है तो कैश के क्रेडिट में realization है। चलो विल गो, कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन है। सी, ये कैश इंक्रीज हो गई, इतनी कैश कलेक्ट हो गई, and out of that we pay realization expenses and we pay external liability. Yes, but don't forget to pay आशा। आशा भी खड़ी है भैया, मुझे भी पे करो अगर पैसे है तो। so you can see here we have that much amount, ये अमाउंट है अपने पास, काफी है, ये पे करने के बाद भी पैसे बचते हैं हमारे, अगर आप टोटल करोगे ना इसकी तो ये ज्यादा है, तो हम आसानी से आशा लोन भी पे कर सकते। तो चलो आशा को क्यों नाराज करना है, लेट्स पे आशा लोन ऑल्सो। आशा ने एंट्री कहाँ से की थी? पोस्टिंग के वक्त क्रेडिट से। बाहर कहाँ से जाएगी? डेबिट से। सेकेंड इफेक्ट एक आशा लोन में होगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? पे किया है भैया, जब भी पे करते दैट मीन्स कैश अकाउंट, तो राइट हियर टू कैश, पेड किया 16,000, जितना था उतना पे किया। आशा के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में आशा लोन। सी, इसका नाम, आशा का नाम कैश के बुक में और कैश का नाम आशा के बुक में। देखो यहाँ पे मैंने आशा लोन लिखा है। डन, ये समझ लो, डेबिट हियर क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। डन। अब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी भी पे हो चुकी है, इंटरनल लायबिलिटी भी पे हो चुकी है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आशा लोन भी क्लोज कर लो, टैली हो रहा है, ये भी काम कर लो, बाद में लास्ट में किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस तो कुछ बचता नहीं है, टैली हो रहा है, ठीक है? चलो नाउ इट्स टाइम, नाउ सी हियर, कुछ बचा है क्या?
पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट हो गया, लाइबिलिटी भी हमने याद से पे की, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट। वेरी सिंपल। देखो किसकी टोटल ज्यादा आ रही है, डेबिट की आ रही है ये सब टोटल या क्रेडिट की? आई गेस क्रेडिट की आ रही है। यस, देखो आज हमारा क्रेडिट साइड हेवी है, इतनी टोटल आ रही है 420, 4,20,000 से। तो जो हेवी है वही यहाँ पे लिखो 4,20,000। पहले दो प्रॉब्लम में हमारी डेबिट साइड हेवी थी, बट हियर क्रेडिट साइड हेवी हो गई। ये 1 2 3 ये तीनों के अगर टोटल करते हो तो इतनी आते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब क्रेडिट माइनस डेबिट, अभी सबकी टोटल करो पहले, और जो भी टोटल मिलेगी वो टोटल इसमें से माइनस करो। सी वी गेट द आंसर। क्या बोलोगे इसको? इसका मतलब क्रेडिट हेवी है, मतलब इनकम साइड हेवी है। तो इनकम अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, दैट विल कॉल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। डन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बुक में एक बार चेक करो आंसर आया है कि हमारा 8,000। चलो नाउ नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? नाउ दिस रियलाइजेशन प्रॉफिट जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ऑफ कोर्स पार्टनर्स। इफ योर डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सी रेशियो विल बी सेम, 2:2:1, 2:2:1, रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी 8,000 मिला है उसको डिस्ट्रीब्यूट, देखो फिर एक बार यहाँ पे बताती हूँ हमको प्रॉफिट कितना मिला है, 8,000। तो ये 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सी व्हाट इज द रेशियो? 2:2:1। तो 8,000 डिवाइड करो तो विल गेट दिस आंसर। डन। चलो नाउ क्लोज द अकाउंट। पहले निशा को क्लोज करते तो दिस हेवी साइड कम्स दिस साइड, देखने से ही पता चलता है दिस इज द हेवी साइड। सो राइट हियर नाउ 44,000 minus 7,200, this is the balance 3,600. now same about Usha, see 48, again 48,000 में से ये वाला माइनस करो तो विल गेट 33,600. now again Asha, same, सबकी क्रेडिट साइड टोटल हेवी आ रही है। अगेन 1,28,000 में से ये माइनस करो 144 here. yes, now what will call, कौन सा अकाउंट में नेक्स्ट जाना है हमारा? कैश। so will write here to cash. इसका मतलब क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट एंड सेकंड में। इसका मतलब क्या है? आशा, उषा, निशा का बैलेंस किधर आया है? दिस इज अ बैलेंस, माइनस करने के बाद जो आया है कौन सी साइड आया है? डेबिट। दैट मीन्स आशा, उषा, निशा आर द रिसीवर बिकॉज डेबिट द रिसीवर। सो दे आर द रिसीवर। उनको पैसे मिले, जो भी असेट बेचने के बाद उन्होंने लाइबिलिटी पे की, और जो भी लाइबिलिटी पे करने के बाद उनको जो मिला वो यहाँ पे लिखा सी है। So बैलेंस शीट गेट टैली। हो गया। ये लास्ट में आ गया। ठीक है, ये पहले ही हमने लिखा है। ठीक है, ये इफेक्ट गलत, एनिमेशन का इफेक्ट गलत हो गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, आपके बुक में तो लिखा होगा ये ऑलरेडी पहले ही लिखा है हमने। नाउ दिस ट्रांसफर हियर एंड नाउ आवर बैलेंस शीट गेट, सॉरी नॉट द बैलेंस शीट, कैश अकाउंट गेट टैली। खत्म। देखो चेक करो एक बार टेक्स्ट बुक में हमारा आंसर करेक्ट है क्या। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझा है तो आपको जैसे आप कमेंट में लिखते हो, क्वेश्चन पूछते हो, मैं भी आपको आंसर देती हूँ, तो करो। लाइव सेशन भी हम लेंगे अगर डाउट रहेगा तो। ठीक है, डाउट कब आएगा? जब आप सॉल्व करोगे। तो प्लीज 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 सॉल्व करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।